مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی. واہ واہ، بے شک بے شک. مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے کبھی ٹالی نہ جائے گی. بے شک بے شک. بات ان کی خدا سے کبھی ٹالی نہ جائے گی. مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے کبھی ٹالی نہ جائے گی. عشق غمِ حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. واہ واہ، سبحان خوشی اللہ. ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. بے شک. اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. عزیزان وطن، ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، لائق کے تحسین مبارکباد ہیں آپ سبھی لوگ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء اکرام اور شاسن پرشاسن سے آئے ہوئے ہمارے سب ادھکاری جو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. سبھی لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور ہاردک ابھینندن سواگت کرتا ہوں، اور اپنی محفل کو اب یہیں پہ موڑ دینا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ رات بڑھ چکی ہے اور اختتام پذیر پر ہے. بس یہ کہتے ہوئے کہ ثانی نہیں ہے جس کا سارے جہان میں، بے شک بے شک بے شک. ثانی نہیں ہے جس کا سارے جہان میں، ایسا بنا ہے گنبد خضرا رسول کا. بے شک بے ایسا شک. بنا ہے گنبد خضرا رسول کا. اور دنیا نہ لا سکے گی حشر تک مثال، دنیا نہ لا سکے گی حشر تک مثال، سجدہ جو کر گیا ہے نواسا رسول کا. بے شک جو کر گیا ہے نواسا رسول کا. عزیزان وطن، ملت کے نوجوانوں، یہ حضرت بابا منا شاہ بقائی رضاکی اشرفی علیہ الرحمہ کا یہ 36واں عرس پاک ہے. 36واں عرس پاک ہے جس میں آپ سبھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ قدیم زمانے سے یہ عرس منایا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کچھ بڑھ کے یہاں تک پہنچا، اور آج اس دور میں اس مقام پر آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عنایتیں ہیں، انہی کے نام سے آپ کا یہ اسکول بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. ہر چیز کی پڑھائی ہو رہی ہے. اسکول میں 5 ماسٹر ہیں، اور 5 ماسٹر تعلیم دے رہے ہیں. یہ سب انہی کی عنایتوں کا کرم ہے، ان کا فیض ہے، اور آپ لوگوں کی لگن ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر اسی محنت سے چلتی رہی تو انشاءاللہ تعلیم کا یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا چلا جائے گا. بے شک بے شک. اور جب تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تو اپنے اور پرائے کی پہچان ہوتی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ میں بتاؤں کہ ہمارا اسلام بھائی چارگی، اخوت، محبت، اخوت سکھاتا ہے. بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا سکھاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، تمہیں پیغام دیتا ہوں یہاں سے جاتے جاتے، یہ میرا پیغام لیتے رہنا کہ سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی رضا لے کے آیا ہوں. ہٹ جاؤ میرے راستے سے ہے مشکل اب تم، میں اپنے گھر سے اپنی ماں کی دعا لے کے آیا ہوں. اپنے گھر سے اپنی ماں کی دعا لے کے آیا ہوں. جب بھی آپ نکلیں، الحمدللہ اگر آپ کی ماں باپ کا سایہ موجود ہے، ان سے دعائیں لے کر نکلیں، اور جب ان سے دعائیں لے کر نکلیں گے تو راستے میں آنے والی مشکلیں دور ہٹ جائیں گی. اس لیے ہٹ جائیں گی کہ ہماری ماں کی دعا ہوگی، مشکل کشا کا کرم ہوگا، مشکلیں دور بھاگ جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ. کہ ہم مشکل کشا والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں. کیا بتاؤں میں تجھ کو، میں کیا کیا علی کا ہے. کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے. کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے. طاقت خدائے پاک نے بخشی تھی اس قدر، بس ایک ہاتھ مارا کہ خیبر علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان ہاتھ اللہ. مارا کہ خیبر علی کا ہے. اور جس نے رسول پاک کی دین پہ سب کچھ لٹا دیا، جس نے رسول پاک کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا، وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے. وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے. بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے، اس لیے بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے، اس لیے خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے. جلوے میں جلوہ علی کا ہے. یہ بھارت کی سرزمین ہے، یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا یہ سبق ہے. ہم دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں. انسانیت کا درس کائنات کے بانی جناب محمد رسول اللہ نے مکے میں دیا تھا. اسی انسانیت کا درس دینے کے لیے انہی کے گھرانے کا یہ 18واں بیٹا اس دھرتی پر جب آتا ہے، ہندوستان پر جب تشریف لاتے ہیں تو انسانیت کا درس دیتے ہیں. یہاں تک کہ محفل میں آنے والا اگر آپ کو مارنے کے ارادے سے آتا ہے، قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے، تو ایک ایک کر کے سب جب چلے جاتے ہیں، سارے لوگ چلے جاتے ہیں،
तो ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते भाई जिस इरादे से तुम आए हो अपना काम जल्दी से कर लो, वरना मेरा कोई चाहने वाला तुझे देख लेगा तो तकलीफ पहुंचा देगा। कुर्बान जा मुसलमानों, ये गरीब नवाज है कि आया है दुश्मन मारने के लिए, फिर भी उससे कहते हैं जल्दी से अपना काम कर ले वरना कोई तुझे तकलीफ पहुंचा देगा। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, हमारा मजहब सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि लोग ताइफ में पत्थर चलाते रहे, रहमतें फिर भी आका लुटाते रहे। लोग ताइफ में पत्थर जलाते रहे, रहमतें फिर भी आका लुटाते रहे। अबू जहल तुझको ईमान मयस्सर न था, वरना कंकर भी कलमा सुनाते रहे, वरना कंकर भी कलमा सुनाते रहे। तो अजीजाने वतन मिल्लत के नौजवानों, ये बज़ में मैं है महबूबे रब जाने और बरसे की यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग आए से शाम से लेकर अब तक यहाँ बैठे रहे और तमाम तकारीरें ना तो मनकबत आपने समाअत फरमाई। ये मौके कब मिलेंगे? अजी आज अब हैं, कल नहीं होंगे। कौन जानता है कि हमारी जिंदगी की आखिरी दिन कौन सा होगा, कौन सा वक्त होगा, ये कौन जानता है? किसी को खबर नहीं है। इसलिए हमें ये करना चाहिए और पैगाम देना चाहिए कि करना जो काम कर लो आज कर लो, कल के ऊपर मत डाला करो। इसलिए जब भी ऐसी कोई महफिल का इनकाद हो, उलमाए कराम की तशरीफ आवरी हो, तो ऐसे मकाम पर हाजिर होकर के थोड़ी देर बैठकर जिक्र रसूल सुन लिया करो। इसलिए कि जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ। और कुर्बान हो गए हैं जो आले रसूल पर, जन्नत में वो रहेंगे शहे करबला के साथ। करबला वालों से मोहब्बत है? दोनों हाथों को उठाओ तो या हुसैन। आका हुसैन ने कितनी मोहब्बत किया, वाकई आपकी निगाहों के सामने है। कितनी बुलंदियों पे था रुतबा हुसैन का, कितनी बुलंदियों पे था रुतबा हुसैन का। पोसा गहे रसूल था माथा हुसैन का। और तुम लोग अपनी खैर मनाओ वहाबियों, काफी है सुन्नियों को वसीला हुसैन का, काफी है सुन्नियों को वसीला हुसैन का। कितनी बुलंदियों पर रुतबा हुसैन का। आका हुसैन कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आका हुसैन इतनी मोहब्बत करते हैं, एक आम आदमी के लिए ये पैगाम है कि तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। हम उस हुसैन के बारे में क्या बताएं जिसने पैदाइश से लेकर के करबला तक, मदीने से लेकर के करबला तक और पैदाइश से लेकर के शहादत तक सिर्फ खुदा ही खुदा किया है और खुदा को ही याद किया है। अब खुदा की जिम्मेदारी बन जाती है इस हुसैन ने खुदा को इतना याद किया है, वो खुदा हुसैन की याद करवाता रहे, ऐसी कौम पैदा करता रहे कि दुनिया वाले उसे याद करते रहे। जब ये आम आदमी की बात ये है तो वो तो हुसैन है। अच्छा, उनसे सबको मोहब्बत है। आका हुसैन के लिए तारीफ बता दूं हवाला के साथ। सब लोग वाकया बयान कर फरमाते हैं कि आका हुसैन के लिए जन्नत से पोशाक आया था, जन्नत से पोशाक आया था, लेकिन मर्जी हुसैन पर रख दिया गया। जाओ हुसैन से पूछो कौन सा रंग उनको पसंद है, कौन सा रंग उनको चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। अल्लाह जो बनाने वाला है, इसने जिंदगी दिया है, वही मौत देगा। लेकिन आज तक किसी से खुदा ने पूछा नहीं है कि हम तुम्हें मालवर बनाएं, गरीब बनाएं, अमीर बनाएं, बादशाह बनाएं, फकीर बनाएं। किसी से खुदा ने पूछा नहीं है। यहाँ तक कि जिसे चाहा नबी बना दिया, जिसे चाहा वली बना दिया, जिसे चाहा कलीमुल्लाह बना दिया, जिसे चाहा सफीउल्लाह बना दिया, जिसे चाहा खलीलुल्लाह बना दिया, जिसे चाहा दोस्त बना लिया, जिसे चाहा अपना महबूब बना लिया। लेकिन किसी से ये नहीं कहा, उसकी मर्जी पे ये नहीं छोड़ा और ये नहीं कहा जाओ उनसे कहो जैसा वो कहेंगे वैसा हो जाएगा। ये तो मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे रसूल की शान है कि मेरे रसूल नमाज में होते हैं और मर्जी होती है कि अल्लाह मेरा किबला ये नहीं, ये होना चाहिए। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब देर न करो, 2 रकत इधर पढ़ाई है ना, अब 2 रकत इधर पढ़ा दो, जो मर्जी आपकी वही मर्जी खुदा की है। तो ये मुस्तफा की शान है, ये मुस्तफा की शान है। उनकी अजमत का क्या ठिकाना है, जिनके ज़ेरे कदम ज़माना है, वो रसूल हाशमी है और उनकी
तुफैल में उनके बेटे, रूहानी बेटे इमाम हुसैन के लिए जब पोशाक आया तो मर्ज़ी हुसैन पे छोड़ दिया गया, जाओ पूछो हुसैन से, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। और हुआ ऐसा। सब्ज रंग सुर्ख रंग वाकया निगाहों में है, वाकया निगाहों में रखो। तो जब खुदा ने हुसैन की मर्जी पे एक ही रंग का कपड़ा दो रंग में बदल जाता है, हुसैन कहते मुझे सुर्ख चाहिए, हसन कहते मुझे सब्ज चाहिए, ऐसा हो जाता है। यही आका हुसैन हश्र के मैदान में खड़े हो जाएंगे और रब्बे कदीर कहेगा हुसैन तुम जन्नत में जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? मेरे आका हुसैन फरमाएंगे परवरदिगारे आलम ये मर्जी मेरी है, अब मैं जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मेरे नाना जान की पूरी उम्मत को मेरे हवाले नहीं कर देगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की मर्जी जब खुदा ने दुनिया में तलाश कर लिया तो हश्र में कहेगा है हुसैन तूने मेरे लिए असगर को दे दिया, तूने मेरे लिए 18 साल का बेटा अली अकबर दे दिया, तूने मेरे लिए अब्बास अलमदार को दे दिया, तूने मेरे लिए औरंग मोहम्मद को दे दिया, तूने मेरे लिए पूरा खानदान लुटा दिया, और पूरा खानदान लुटा देने के बाद फिर भी तू हुसैन है हुसैन। फिर भी हुसैन कहते हैं यजीदियो मेरा 6 माह का बच्चा ले लिया, 18 साल का जवान ले लिया, कोई बात नहीं है, अब भी तुम मुझे कत्ल ना करो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे लिए बख्शिश के लिए सिफारिश करेंगे। किसका जिगरा होगा, किसका दिल होगा, ये हमारा इस्लाम सिखाता है कि दुश्मनों के साथ भी हम दुआएं देते हैं। आका हुसैन ने करबला के मैदान में यही कहा था कि अब भी तुम बाज आ जाओ, अगर मुझे कत्ल ना करो तो हम तुम्हारे लिए नाना जान से सिफारिश करेंगे। इतना करने के बाद तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, परवरदिगार कहेगा तूने सब कुछ तो मेरे लिए किया है ऐ हुसैन, आज मैं तेरे लिए करता हूँ। तेरे नाना जान की जो उम्मती है ना, इनको पहचान करके जिसे चाहे अपने साथ जन्नत में लेकर चला जाए, इसलिए कि जन्नती जवानों के तुम सरदार हो, अपने सारे गुलामों को जाओ जन्नत में लेकर चले जाओ। इसलिए लोग कहते हैं जन्नत को पंजतन का तलबगार चाहिए, जन्नत को पंजतन का तलबगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। खुलती है बंद होती असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। वो इरशाद फरमाते तो मेरे दोस्त ये बातें खत्म हुई, ये 36वां उर्स पाक है जो आज की तकरीब मुकम्मल हो रही है, खत्म हो रही है और महफिल भी खत्म हो रही है। आप थक गए हैं, अब आप अपनी बातों को समेट देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं बोलता रहूंगा तो आप सुनते रहेंगे, आप हटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपके दर्द का एहसास है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ और सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमा ले, हम सब के लिए जरिए नजात बना दे। आने वाले वक्तों में इससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर मिलाद मुस्तफा मनाने का मौका इनायत फरमा दे। याद रखना हमेशा बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना, इंसानियत सिखाना, ये मत देखना। अच्छा ये बताओ मुसलमानों, अगर आप ये वहां बैठे हो और बैठने के बाद बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद एक छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा कुएं में गिर गया, अब आप बताएं उसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? जान बचाएंगे नहीं बचाएंगे? ये नहीं देखेंगे बच्चा है किसका, किस कौम का है, कोई भी होगा ये नहीं देखेगा ये बच्चा है किस कौम का, कहां का रहने वाला, नहीं, पहले उसकी जान बचाओ। इस्लाम ये कहता है, मजहब ये कहता है, पहले उसकी इस्लाम, पहले उसकी जान बचाओ, उसके बाद फिर देखना किस कौम का बच्चा है। अरे वो तो बच्चे की बात है, मैं कहता हूँ अमलुस सालिहात जहां जहां कुरान में आया है वहां यही कहा गया है कि वक्त पर जो काम अच्छा किया जाए उसे अमलुस सालिहात कहते हैं। आप नियत बांध के नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ना इबादत है, बगल में बच्चे पे सांप ने हमला कर दिया, बच्चा रो रहा है, अब आप नमाज पढ़ेंगे कि बच्चे को बचाएंगे? इसलिए कि अमलुस सालिहात बेहतर अमल ये है कि उस बच्चे को बचाओ, उसकी जान
बचाओ ताकि उसको मोजी जानवर डस न सके। पहले बच्चे की जान बचाओ, उसके बाद जब उसको महफूज कर दो फिर वही नियत बांध करके अल्लाह के आगे झुक जाओ, सजदा कर लो, अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेगा। ये अमलुस सालिहात है, ये अमलुस सालिहात है। इसलिए नेक काम करने के लिए अपना पराया नहीं देखा जाता। हम इंसान हैं, इंसानियत सीखो, इंसानियत के साथ भाईचारगी, मोहब्बत, इखवत, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार करके और मोहब्बत के साथ दुनिया में रहो। चंद दिन की दुनिया है और दुनिया में जितने आए हैं सबको ज़ेरे ज़मीं जाना है, निस्त नाबूद होना। ऐसे अमल करके जाओ कि जाने के बाद लोग कहें हाँ यार अच्छा आदमी था, जाते जाते जा रहा लेकिन अच्छा आदमी था। ऐसा नहीं कि जाते जाते जा रहा लेकिन पीछे से लोग कुछ और कहना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा काम मत करना आइंदा के लिए। इसलिए ये पैगाम है, इस अल्लाह के वली की निगाहों के सामने ये पैगाम देता हूँ। यहाँ गौसो ख्वाजा भी हैं, यहाँ तमाम औलियाए कराम का करम है, तब ये प्रोग्राम हो रहा है। बस इख्तिताम के साथ बिल्कुल बिला ताखिर, बिला किसी इंतजार के मैं अपनी बातों को समेट करके आपसे यही कहूँगा कि आप सारे लोग मिलकर खड़े हो जाएं, मोहब्बत से सलाम पढ़ें।